Hey students, welcome back to my channel. Today in this video we discuss about some important formulas related to class 7th CBSE medium mathematics. सबसे पहले हम लेंगे डाटा हैंडलिंग चैप्टर. Here we have the probability of event E is equal to total number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Means आपने लूडो तो खेला ही होगा, उसमें एक डाइस होती है, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर प्रिंट होते हैं. अगर आप डाइस फेंकेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक. तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. 1 इज अ सिंगल नंबर एंड टोटल नंबर इज 6. So we have 1/6. Now we take triangle chapter. Here we have one right angle triangle. As you see in this diagram, this side is called hypotenuse and this side is called perpendicular and this side is called base. So we have Pythagoras theorem as hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Here we have one angle is right angle, so it is called right angle triangle. Now we have third property of triangles as congruence of triangles. We have different rules of congruency as SAS, in which two triangles are taken and in both triangles two sides and an angle are equal. That is called SAS. Second property is SSS, in which in both of two triangles all the three sides are equal. And third property is ASA. In this, in the two triangles, two angles and one side which come between the angles are equal is called ASA, angle side angle. And next property is AAS. Here we have two angles and one side which is not come between the angles are equal is called AAS. ASA में साइड दोनों एंगल के बीच में आएगी और AAS में साइड दोनों एंगल से बाहर आएगी. अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट. एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज RHS, that is applied in right angle triangle. RHS means right angle hypotenuse side. In two right angle triangles we have two right angles equal, and if hypotenuse and one side is equal, that is called congruent triangle, RHS. Now we take perimeter and area chapter. First we take perimeter. In that, the first diagram of square, the perimeter of square is 4 into side. जो आपको साइड दिए स्क्वायर के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. अगर आपको लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई दी है तो दोनों को ऐड करके उसके 2 से मल्टीप्लाई करके उसका आ जाएगा पेरीमीटर. नाउ थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स. किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स की वैल्यू आपको पता है, तीनों को जोड़ ऐड करके आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज सर्कल. इसका पेरीमीटर होता है 2πr.
वेयर पाई इज़ अ फिक्स वैल्यू इज़ 22/7, 22/7, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई मीन्स 22/7 एंड जो रेडियस की वैल्यू दी होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज एरिया। तो फर्स्ट ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। जो साइड दी होगी, लेट अस सपोज साइड दी है 4 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया होगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ओके, नाउ वी हैव द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ। अगर लेंथ 5 दी है, विड्थ 3 दी है, तो एरिया हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। Now we have the area of triangle is 1/2 into base into height. If we have right angle triangle, अगर right angle triangle दिया है तो उसका बेस और उसकी हाइट यानी परपेंडिकुलर को लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई पहले बताया मैंने आपको 22/7 और रेडियस जो दी होगी उसका स्क्वायर मतलब r इंटू आर। लेट अस सपोज रेडियस 4 दिया है, तो पाई 22/7 इंटू 4 इंटू 4, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। The first part is a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती हैं। हेयर वी हैव फर्स्ट पावर m एंड सेकंड पावर n, तो इक्वल टू वी हैव बोथ पावर ऐड a to the power m plus n। सेकंड इज a to the power m अपॉन a to the power n। मैं डिवाइड करना है, तो डिवाइड में हमेशा पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो we have a to the power m minus n। Now third is a to the power m to the power n। अगर पावर की पावर दी है तो पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो we have a to the power m into n। Now fourth is a into b की पावर m। अगर a into b की पावर होल पावर m है, तो ये a की भी होगी और b की भी होगी, तो a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर m। नाउ वी हैव फिफ्थ a अपॉन b की पावर m। अगर ऐसा दिया है तो a अपॉन b की पावर m, तो ये a की भी होगी और b की भी होगी, तो a की पावर m अपॉन b की पावर m। नाउ वी हैव लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई सी भी वैल्यू हो, कोई सा भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लो 64 की पावर 0 दी है तो उसे लिख देते हैं 0, ये रॉन्ग है। कोई सा भी नंबर हो, उसकी पावर 0 है, उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1, मीन्स a टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।